Hello students, today I'm going to explain you chapter 10 of class 3rd. The name of the chapter is More About the Earth. So let's start the chapter. So basically what you are going to study about this chapter, you are going to study about globe, about maps and about continents and oceans. Okay. So first of all, let me explain you why we need to make a globe and map, why it is necessary, why people made this, why there is need to make this. So actually it's very important to you have a visualization form of your earth, that how it actually looks like. So globe is just the form of earth. Okay, it's a 3D model of earth. Okay, but what map is just a paper representation. Okay, it has more information and all. Okay, so in detail you are going to study about these two forms of earth which we have made for our visualization and for better study of earth. Okay, so first we have globe. Let's read about it in detail. So a globe is round like the earth. Okay, earth की तरह पूरी तरह round है. Okay, it shows the correct shape of the earth. We can see all the parts of the earth by rotating it. Okay, as I already explained you, it's a 3D shaped structure. So by rotating it, we can see all the parts of earth clearly, like a visual representation of earth. We generally use globe to study various features of earth. Be there some problems using a globe. The globe is model of whole earth. We cannot make a globe of any small portion of the earth. That's why we never see a globe of a country or a city. Big globes are different to handle and carry. Okay, so what they are trying to say, they are trying to say that a globe is best for 3D रिप्रेजेंटेशन. यानी कि अगर आपको पूरी अर्थ एक्चुअल में देखना है कैसी है, तो वो ग्लोब सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है. मैप आपको सिर्फ एक सर्कल को एक पेपर पे करके देता है, बट एक्चुअली में हमारी अर्थ कैसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है. ठीक है, इस तरह से लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, लेकिन अब किसी छोटे से एरिया को, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई छोटी सी कॉलोनी के बारे में जानना है, तो इस पूरी अर्थ पे वो छोटी सी कॉलोनी के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस है कि ग्लोब पर आप हर पोर्शन को अच्छे से नहीं देख सकते, आप सिर्फ ओवरऑल विजुअलाइजेशन देख पाओगे. ठीक है, और जो बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं उनको कैरी करना ही मुश्किल होता है. ठीक है, हर जगह आप वो मॉडल लेकर जाओगे, इट कैन बी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कैरिंग अ पेपर. ठीक है, इसलिए इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को और ज़रूरतों को समझते हुए हमने मैप्स बनाए. ठीक है, जो कि एक पेपर रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक पूरी जो अर्थ है, पूरी जो स्फेरिकल अर्थ है, उसको एक रेक्टेंगुलर पेपर में शो करना ही मैप है. ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट इट. Map is another simple and easy way to know about the landforms of the earth. It can be rolled and carried to anywhere easily. We can draw a map on a paper sheet. If we fold it in such a way that its two ends on the right and left side join each other, we will see it all becomes almost round in shape. The part of earth which were very far from each other has now come closer. Maps can be big or small in size. Sometimes we use large size maps and hang them on the walls. These maps are called wall maps. ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो पूरी सर्कुलर अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सर्कुलर अर्थ है. ठीक है, ऐसे बना देती हूँ मैं. ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे पेपर रिप्रेजेंटेशन में आप ऑरेंज से इमेजिन करो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑरेंज है, वो एक अर्थ की शेप का है. हमने पिछले चैप्टर में ऑरेंज को अर्थ से कंपेयर किया था. तो अगर आप उसको ऊपर से ऐसे छीलो और उससे एकदम फ्लैट वे में लाना पाओ, तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. ये इजी नहीं है कि आप किसी सर्कुलर 3D शेप को एक पेपर पे दिखाओ जो कि एक 2D शेप है. ठीक है, तो पहली बात तो ये डिफिकल्ट है. लेकिन अगर इसको पॉसिबल किया भी है तो आप इमेजिन करके देखो, आपने ऑरेंज के पील को इस तरह से छीला तो उसके जो ऊपर और नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो उसके एंड्स में आ जाएंगे. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस. ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे वो पेपर के एंड पोर्शंस में आ गए हैं. ठीक है, और अब ये जो पेपर रिप्रेजेंटेशन है इसको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजीली है. ठीक है, और राइट साइड आ गए हैं. ठीक है, और ये राउंड शेप में है ऑलमोस्ट, यानी कि हमने भले इसको पेपर पे दिखा दिया, लेकिन ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर है जो हमने पेपर पे दिखाया. एक एक पार्ट इसका मैप्स पर विजिबल होता है. ठीक है, और बड़े और छोटे मैप्स होते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, और जो बड़े मैप्स वॉल पर लगाए जाते हैं उनको हम वॉल मैप्स बोलते हैं. ठीक है, A book of small maps is called atlas. A map on which we can see the whole surface of the earth is called world map. ठीक है, यानी कि जब पूरी अर्थ को हम एक मैप की फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको वर्ल्ड मैप बोला जाता है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ वर्ल्ड मैप हो, हर पर्टिकुलर जगह के अलग अलग मैप्स हो सकते हैं. बहुत सारे तरीके के मैप्स होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी वर्ल्ड को यानी कि पूरे अर्थ को एक पेपर पर शो कर रहे हो तो उसको हम वर्ल्ड मैप बोलेंगे. और इन सभी मैप्स की जो एक बुक होती है उसको हम एटलस बोलते हैं. ठीक है, उसमें सभी फिजिकल, पॉलिटिकल, हर तरीके के मैप्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस.
Let's study about it. Children, you would see in the map that some areas are blue in color while some are brown in color. Blue color shows the water bodies while brown color shows the landmass. The large water body is called ocean. ठीक है, यानी कि ये जो हमने ऊपर अर्थ देखी है, ठीक है, इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्राउन पोर्शन है, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाया गया है, बट जनरली ब्राउन कलर से दिखाया जाता है, तो वो लैंड मास को डिनोट करता है कि वो वहाँ पर लैंड है, वहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाटर बॉडी का पार्ट होता है वो ओशन होता है, ठीक है। मैंने आपने पढ़ा होगा कि छोटे छोटे से जो छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे वाटर बन जाता है जनरली ड्यू टू रेनफॉल, वो उन्हें हम पॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस तरह के जो सबसे बड़ा साइज होता है उनको हम ओशंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप एम आई क्लियर। देयर आर 4 ओशंस इन द वर्ल्ड सच एज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 4 ओशंस है हमारे पास, और हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ओशन से 4 और कॉन्टिनेंट्स से 7, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंडिया है, ये आप देख सकते हो हमारा इंडिया, और जस्ट इंडिया के नीचे ये ओशन, इसलिए उसी के नेम पर इसका नेम इंडियन ओशन पड़ा है। नेक्स्ट पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा ओशन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे सब जगह। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और ये बाउंड्री हो गई, नहीं, इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, ये बस हमने इमेजिनेशंस करी है ऑन द बेसिस ऑफ द वेराइटी, हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया, ठीक है। तो हमारे 4 ओशंस हो गए ये, और ये सबसे ऊपर आर्कटिक ओशन है, जो बिल्कुल आर्कटिक बोला गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ है, वहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, नॉर्थ पोल की साइड है एकदम, ठीक है। और बाकी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये यूरोप है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यूरोप और एशिया, ठीक है, यानी कि ये यूरोप और एशिया बिल्कुल बिल्कुल टच हुए हैं, राइट, बिल्कुल टच हुए हैं ये, इसलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट को भी एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है यूरेशिया, ठीक है। और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को यूरल माउंटेन होता है जो सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रॉड चीज़ें जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है, और 4 ओशंस होते हैं, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, और इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन है, और आर्कटिक ओशन सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, ठीक है। चलिए, ये हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में देखा, अब डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। So children, look at the map hanging on the wall. The top of the map shows the north direction, the bottom south. On your left side is west and your right is east. In all the maps, directions are usually shown in the same manner. यानी कि हर मैप में, ऑलमोस्ट सभी मैप्स में डायरेक्शंस कैसे शो की जाती है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और जो हमारा ईस्ट होगा, यानी कि इस मैप के अकॉर्डिंग ईस्ट नहीं, जो हम देख रहे हैं तब जो उनका ईस्ट होगा वो, और हमारा देखने वाले का वेस्ट, ठीक है। Next we have compass. A compass is an electronic instrument which is like a watch, has a needle that points always in the north direction, ठीक है। यानी कि कंपास एक इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वॉच की तरीके से आप देख सकते हैं, वॉच की तरह दिखता है, और इसके पास एक नीडल होती है, ठीक है, इसको नीडल बोलते हैं, ये जो आपको लंबी सी दिख रही है, ठीक है। और ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, आप ये देख सकते हो, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, और नॉर्थ पता चल गया तो साउथ उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। दिस कंपास इज यूजुअली इन द एरोप्लेन टू नो द प्रॉपर डायरेक्शंस, यानी कि एरोप्लेन्स में जनरली यूज़ किया होता है प्रॉपर डायरेक्शंस के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करा। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।